Good afternoon, students. Students, this is your mock test 7, and today we will be discussing the first part of this mock test, comprising of 25 questions. So, the directions from question 1 to 3 are given as that some parts of the sentence have errors and some are correct. Find out which part of the sentence has error. The number of that part is the answer. If a sentence is free from error, then your answer is D, that is no error. ठीक है, so this is spotting of errors. हम error spot out करेंगे. अब देखिए, पहले सेंटेंस में, in the first sentence, the word lying is written, but it is written as L-A-Y-I-N-G. It is laying, fine. So there is a difference in lying and laying. It should be L-Y-I-N-G. I told the teacher next. तो मैंने मार्क कर दिया आंसर बी है इसका, लाइंग डाउन गलत है. I told the teacher that the homework set for the day was too much heavy for us to complete. No error. I told the teacher that the homework set for the day was too much heavy for us to complete. इसमें कोई गलती नहीं है. There is no error, no need of any improvement. Option D, question number 2. This is absolutely fine without any error. Someone they don't know who knocked at their door in midnight. Someone they don't know who knocked at their door in midnight. अब जानते हैं midnight जो है पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके साथ हम प्रीपोजिशन एट यूज़ करते हैं. एट नून, एट मिडनाइट, फाइन. सो यहाँ पे someone they don't know, this is correct. Who knocked at, this is again correct. Their door in the midnight, मतलब ऑप्शन सी में एरर है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. इन मिडनाइट नहीं होता, एट मिडनाइट होता है. चलिए आगे. इन द फॉलोइंग, नाउ द डायरेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन 4 and 5. In the following questions, a part of sentence is italicized. Below are given alternatives to the part as A, B and C. ठीक है. अब देखिए, कुछ इम्प्रूवमेंट अगर लगता है आपको कि इस सेंटेंस को जो अंडरलाइन किया हुआ है या इटैलिसाइज किया हुआ है उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें जो है उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो हमने उसे लिखना. द टॉडलर हैज़ अ हैबिट ऑफ थ्रोइंग tantrums. The toddler has a habit of throwing tantrums. Throwing tantrums नहीं बोलते हैं. रादर tantrums एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे आप जो एक्सप्रेस करता है एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, गुस्सा जब आता है ना बहुत ज़्यादा, इट्स एन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर. ठीक है, आउटबर्स्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, इसे हम कहते हैं throwing tantrums. Sorry, it is expressing frustrations. He absented from the meeting. Absented from नहीं होता. He was absent from the meeting. Option A है 5 का. He was absent from the meeting. अब देखो, अगर कोई निकलता है वहाँ से या छुपता है या अटेंड नहीं करता, आप लिख सकते हो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग. दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर दिस. ठीक है, ही वॉज एब्सेंट. अगर एब्सेंटेड को रिमूव करना है, लेकिन अगर एब्सेंटेड रखना है आपने, तो फिर उसके साथ जो है आप पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा. ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग. सो 2 ऑप्शंस आर देयर. या तो एब्सेंटेड रिमूव करके वॉज एब्सेंट लिखना पड़ेगा, या एब्सेंटेड रख के एब्सेंटेड हिमसेल्फ करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड. मिसस्पेल्ड, जो गलत स्पेलिंग जिसकी लिखी हुई है. इट इज़ पैसेज, PASSEG लिखा है, जबकि स्पेल है PASSAGE.
G. So this is wrongly spelled. Okay, next is which is the correct spelling. यहाँ पे ये N नहीं है बच्चे, यहाँ पे U कर देता हूँ मैं. This is BIVOUAC. टाइपिंग का एरर है और यही इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी सब गलत है. ठीक है, BIVOUAC. क्वेश्चन नंबर 7. इसका मतलब होता है बेवक का एक टेम्परेरी कैंप लगाते हैं ना सोल्जर्स, माउंटेनर्स, हाँ, विदाउट टेंट वगैरह, ओपन में ही थोड़ी देर के लिए, उसे हम बेवॉक कहते हैं. In the following questions, out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given word sentences. देखिए, study of interaction of people with their environment. क्या बोलते हैं, लोगों के interaction को environment के साथ, और उस study को, उसे हम कहते हैं ecology. Study of interaction of people with the environment is called ecology. ये one word substitution में से है. A list of explanations of the rare, technical or obsolete words. आप जब कोई भी लेसन पढ़ते हैं, when you go through the prose section, poetry या आपका play है, after at the end of the poem, at the end of the prose, there is a column having the glossary. अब वो glossary क्या है? ग्लॉसरी के अंदर आप देखिए वहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ऑब्सलीट वर्ड्स, टेक्निकल या ऑब्सलीट वर्ड्स या डिफ़िकल्ट वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन दी होती है. ऑब्सोलीट किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्सोलीट? OBSOLET. ऑब्सोलीट क्या होता है? ऑब्सोलीट होता है जो आउटडेटेड हो या जो यूज़ में नहीं हो, पुराने. तो सबकी मीनिंग दी होती है वहाँ पे, और उस कॉलम को हम ग्लॉसरी कहते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आंसर है इसका. अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस. शराब या और कोई चीज़ रखने के लिए एक अंडरग्राउंड प्लेस होती है, एक अंडरग्राउंड स्टोर होता है जिसे हम सेलर कहते हैं. CELLAR, सेलर. ठीक है. फ्री समबॉडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट. किसी को ब्लेम से या गिल्ट से फ्री करना, आज़ाद करना. ठीक है, बचाना, आज़ाद करना. फ्रॉम गिल्ट और बीइंग ब्लेम्ड क्या कहते हैं उसे? एक्सोनरेट कहते हैं. ठीक है, एक्सोनरेट मीन्स टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट. अब देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 से, योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एडिड फ्यूल टू द फायर. देखो, एडिड फ्यूल टू द फायर बहुत कॉमन एक एक्सप्रेशन है जो यूज़ होता है. एडिड फ्यूल टू द फायर क्या मीनिंग है इसकी? इसकी मीनिंग है चीज़ों को इंटेंसीफाई करना, इंटेंस करना. ठीक है, एडिंग फ्यूल टू द फायर मीन्स टू इंटेंसीफाई और टू वर्सन द सिचुएशन. दो लोगों में लड़ाई है, आप जाके सिचुएशन को फिर ख़राब कर, तो इट मीन्स यू आर वर्सनिंग द मैटर्स, इंटेंसीफाइंग द मैटर्स. Why do you fight shy of me? Fighting shy of someone क्या मतलब है इसका? Fighting shy of me. Fighting shy of me का मतलब है एक अनविलिंगनेस शो करना किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए. ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखो आपने बहुत बार देखा होगा, यू आर ऑफरिंग सम कैंडीज़, चॉकलेट्स टू समवन, वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट करता है. या कोई भी चीज़, कोई हेल्प करना चाहते हो किसी को, वो भाग जाएगा, नहीं 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 आप ऐसा मत कीजिए, नहीं. सो दैट मीन्स ही इज़ फाइटिंग शाई ऑफ यू. अवॉइड कर. ऑप्शन बी, they have latched on to tourism as a way of boosting the local economy. Latched into, लैच इनटू होता है किसी चीज़ में घुसना, उसको अंडरस्टैंड करना. ठीक है, टू बिकम अटैच्ड टू समथिंग, समबॉडी, टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, टू अंडरस्टैंड एन आइडिया व्हाट समवन इज सेइंग, उसे कहते हैं
light on. 15. When he asked me the way to his cafeteria, I told him follow his nose. Follow his nose का मतलब होता है अगर आप किसी को कहते हो ना, कोई आपसे एड्रेस पूछता है, बताओ ये रेस्टोरेंट कहाँ पे है, अगर आपने उसको बोलना सीधे जाओ तो आप बोलोगे फॉलो योर नोज. सो फॉलो हिज नोज मीन्स टू गो स्ट्रेट, टू गो स्ट्रेट अहेड. सो ऑप्शन डी इसका आंसर, फॉलो योर नोज, क्योंकि नोज़ हमेशा उस अगली डायरेक्शन में होती है. मतलब आप जिस तरफ स्टैंड हो नोज़ उसी तरफ हो. इट मीन्स टू गो स्ट्रेट, टू फॉलो योर नोज. राइट द कॉम्पिटिशन, सॉरी, विनिंग द कॉम्पिटिशन वॉज क्वाइट अ फीदर इन माई कैप. अ फीदर इन माई कैप क्या मतलब होता है? अ फीदर इन माई कैप का एक ऐसा काम, एक ऐसा एक्शन जिस पे आपको प्राउड फील हो. ठीक है, एन एक्शन, फीदर इन माई कैप होता है एन एक्शन जिसका आपको मतलब जिस एक ऐसा मोमेंट जो जिस पे आप प्राउड फील करो. एक्साइटिंग, देखो एक्साइटमेंट की तो बात नहीं हो रही है फीदर इन द कैप में. अचीवमेंट हाँ किसी हद तक, लेकिन सबसे अगर सही देखा जाए रिवार्डिंग, एज इफ़ यू आर बीइंग रिवार्डेड. सो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 17. In the following questions, only one of the four alternatives best expresses the meaning of given word. Annexure meaning मतलब आपने synonym जो है वो निकालना है, synonym यूज़ करना है. बताइए. annexure, annexure होता है ऐड करना. इस हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा आपने. दिस स्टेट वॉज annexed. annexure मीन्स ऐड करना, स्पेशली इनकॉर्पोरेट करना या न्यू टेरिटरीज, न्यू एरिया को एग्जिस्टिंग में मर्ज करना. ठीक है, ये ज़्यादातर कॉन्क्वेस्ट वगैरह में आपने पढ़ा होगा. उसको एनेक्जर कहते हैं. अब हम उसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे. एनेक्जर का मतलब है किसी चीज़ को अटैच करना किसी और चीज़ के साथ. डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे अटैचमेंट आएगा फिर मीनिंग. अब देखिए रिटायरमेंट, कमेंसमेंट, डेवलपमेंट नहीं, अटैचमेंट. क्वेश्चन नंबर 18. एरेंड, ERRAND. एरेंड होता है कोई भी काम. स्पेशली एरेंड वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में फेमस है. एरेंड यहाँ पे वर्क बोलते हैं, काम बोलते हैं, वहाँ पे एरेंड बोलते हैं. और ये कहाँ से फेमस हुआ? जैसे यहाँ पे डिलीवरी बॉयज़ होते हैं जो डिलीवरी देते हैं अमेज़ॉन या डिफरेंट साइट्स की. सिमिलर टू दैट इन इंग्लैंड द यंग बॉयज़ दे यूज़ टू डू द वर्क ऑफ द पीपल. लोगों का काम करते थे. ठीक है, और कैसा काम? जैसे गुड्स का, प्रॉपर्टी, किसी के पैसे पहुंचाना, किसी की चीज़ लानी या पहुंचानी. ठीक है, दे अर्न देयर पॉकेट मनी. सो इसको टास्क ही कहेंगे. दिस इज़ अ टास्क. ठीक है, अब आपने ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है. ऑपोजिट यानी कि एंटोनम लिखना है. एमिनेबल, एमिनेबल, एमिनेबल होता है जो ओपन एंडेड हो, जहाँ पे सजेशंस एक्सेप्टेड हैं. हाँ, जहाँ पे क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेड है, सजेशंस एक्सेप्टेड है, जहाँ पे आपकी बात सुनी जाती है एंड इट हैज़ अ वैल्यू. ठीक है, विलिंग टू हियर भी बोल सकते हैं, विलिंग टू एक्सेप्ट बोल सकते हैं. तो इसका ऑप्शन डी है. ठीक है, 19 का ऑप्शन डी, अनविलिंग. कॉन्स्पीकस. क्वेश्चन नंबर 20. कॉन्स्पीकस, कॉन्स्पीकस का मतलब क्या है? कॉन्स्पीकस का मतलब होता है जो ईज़िली नोटिसेबल हो, विजिबल हो, अट्रैक्टिंग हो, ऑब्वियस हो. ठीक है, जो क्लियर है. मतलब कॉन्स्पीकस होता है जिसमें कोई चीज़ छुपी ना हो. समथिंग ईज़िली सीन, वेरी नोटिसेबल. अब किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है? देखो, सीनरी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, एविडेंट, अपेरेंटली गुड, ईज़िली सीन, नोटिसेबल. अब इसका ऑपोजिट क्या आएगा? ऑब्सक्योर.
ऑब्सक्योर क्या होता है? ऑब्सक्योर होता है डार्क, डल, नॉट विजिबल, नॉट क्लियर इन मीनिंग, अगर मीनिंग में बात करें तो, ठीक है। सो दिस इज़ 20th। अब 21 में बेटा आपको पैसेज दी हुई है। आई विल रीड द फ्यू लाइन्स ऑफ पैसेज। The task which Gandhiji undertook was not only the achievement of political freedom but also the establishment of social order based on truth and non-violence, unity and peace, equality and universal brotherhood, and maximum freedom for all. This unfinished part of his experiment was perhaps even more difficult to achieve than the achievement of political freedom. ठीक है, अब देखिए, the unfinished task of Mahatma Gandhi was unfinished task of Mahatma Gandhi was एक ही चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे वो, पीसफुली कोएग्जिस्टिंग नॉन वायलेंट सोसाइटी। ये बहुत मुश्किल काम था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पीसफुल कोएग्जिस्टिंग नॉन वायलेंट सोसाइटी, मतलब जिसमें हर एक चीज़ जो है इक्वल हो, लाइक द पीपल ऑफ ऑल द कम्युनिटी दे विल बी शेयरिंग एवरीथिंग विद पीस, लिविंग पीसफुली, मेंटेनिंग अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन कोएग्जिस्टेंस। वो नहीं हो पाया, सो एक नॉन वायलेंट पीसफुल सोसाइटी नहीं एस्टैब्लिश कर पाए। Select the best option to complete the sentence. गांधी जी aimed at, स्टार्टिंग में इसका आंसर है, पढ़ा भी हमने लाइन में, गांधी जी aimed at एस्टैब्लिशिंग अ नॉन वायलेंट सोसाइटी, बिल्कुल ये भी चाहते थे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी चाहते थे, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन भी चाहते थे। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी, टू गेट पॉलिटिकली फ्री। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ऑल द एबो दिया हुआ है 8 में, डी में। So all these options are correct. 23rd, according to the passage, people ultimately overturn the form of a social order which is based on conciliation and reapproachment. 23. Next देखते हैं क्या है, which is not congenial to the spiritual values of the people, which is based on correction and oppression. हाँ, जब आप अच्छे से पैसेज को पढ़ते हो तो यही आंसर है इसका। It is based on correction and oppression. Next देखिए, according to the passage which of the following statement is not true? Not true मतलब 3 ट्रू हैं, 1 ट्रू नहीं। It is difficult to change the mindset of people towards property in the egalitarian society. Material satisfaction can be enjoyed only at the expense of others. A social order based on truth and non-violence can help the achievement of maximum freedom for all. अभी तक तीनों जो हैं वो सही लग रहे हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। In establishing the social order, Gandhiji's pattern, the possibility of conflict between different classes hardly exists. नहीं, गलत है, बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। हार्डली एग्जिस्ट कहाँ करता है? In establishing social order of Gandhiji's pattern, the possibility of a conflict between different classes hardly exists. Different classes की conflict नहीं होती तो फिर तो social order maintain हुआ होता, ठीक है। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। There was a problem of conflict between different social classes, ठीक है। That's why he couldn't establish, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, उस टाइम पे सोशल कास्टिज़म का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को इरेक्ट करना बहुत मुश्किल था, एक ऐसे सोशल ऑर्डर को जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो और सब लोग एक साथ रह सकें। सो ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर है। लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट वन नाउ। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्रॉनिक। क्रॉनिक क्या होता है? क्रॉनिक होता है जो काफ़ी देर तक चले, परसिस्टेंट। ये डिजीज़ से या इलनेस से रिलेट करता है, वहीं पे ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है क्रॉनिक। इट मीन्स परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्रॉनिक डिजीज़ मीन्स काफ़ी देर तक रहने वाली। थैंक यू।